हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशिकांत सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, वी विल डिस्कस टुडे अबाउट मैट्रिसेस चैप्टर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टर आर्थर कैले, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, was first person to introduce the concept of matrices in 1857. Matrices is necessary for various branches of mathematics. It is very important tool in mathematics. With the help of matrix, we can solve linear equations. प्यारे बच्चों, जो आपने पिछली कक्षाओं में लीनियर इक्वेशन सोल्व किए हैं, हम उनको मैट्रिसेस की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। इफ़ राधा हैज़ 15 notebooks, we want to express this information in the form of matrix. Radha has 15 notebooks, so we can express it as in matrix. This is the element 15 notebook, or this is the symbol of matrix. Symbol of matrix, this one and this one and this one. These are the notation of matrices. We can say notation, but we will use in this chapter this notation. Another example, if 3 person Radha, Abdul and Simran has 15 notebooks. Radha are represent with R 15 notebooks, 6 pen. These are notebooks, this is pens. And Abdul has 14 notebooks or 7 pen, and Simran has 3 notebook or 15 pen. We can express in the form of matrix as. Dear students, you are looking here 15, 6, 14, 7, 3, 15. These are the elements, and these are the element entries. You can say here 6 entries, 6 element. Now we define the matrix definition: an ordered rectangular array of numbers and functions. Definition क्या है मैट्रिक्स की? An ordered rectangular array of numbers and functions. The numbers and functions are called entries or elements also. With the help of numbers, we can represent matrix as, you see here, these are horizontal lines. We discuss here order of matrix. If a matrix has 3 rows and 2 columns, then order is 3 by 2. Another example, if a matrix has m rows and n columns, then the order is m by n. M by n. M rows and column. First, prefix represent rows and suffix represent columns. This is 3 by 2 order matrix. This information we can express as also 15, 14, 3, 6, 7, 15. These are the notebooks. This is pen, Radha, Abdul and Simran. Order of this matrix is 2 by 3 because here 2 rows and 3 columns. Horizontal, we can say horizontal line represent rows. This is R1 means row, first row, second row and third row. This is first column, second column, C1 and C2. Dear students, here if we represent a matrix as A as Aij of order m
by n. It has M11, A12. If we express this matrix as A11, A12, A13 and so on. अब कॉलम कौन सा है? n तक, A1n, A21 second row first column, second row second column, this is second column, a second row third column and so on, second row nth column and so on. Row, how much row? m rows. A mth row first column, mth row second column, a mth row and third column and so on, mth row or nth column. This is the matrix A. M by n order. M by n order. If we represent Aij, if we represent a element Aij, it means it is the element of ith row and jth column. Ith row and jth column. ये एलिमेंट ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। अब हम मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में जानते हैं बारी बारी से। मैट्रिक्स की टाइप क्या होती हैं? पहले हम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स ले लेते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है? विच हैव ओनली वन रो। यहाँ हम कॉलम को काउंट नहीं करेंगे, कितनी भी कॉलम हो सकती है, लेकिन रो की कंडीशन है एक, सिंगल रो। यहाँ वन रो, जिसमें वन रो हो, वन रो और कॉलम वैसे बता देते हैं 3 है, लेकिन रो कितनी है? 1, इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होता है। आप देख रहे हैं, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स, 1 कॉलम। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिनमें रो और कॉलम सेम हो, जैसे 2 3 1 5, 2 by 2 ऑर्डर। इसमें रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 5 और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट है 3। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? A12, A12 की वैल्यू क्या है? 3। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जान गए कि जितने रो उतने कॉलम, यानी m और n की वैल्यू इक्वल। m बाई n अगर मैट्रिक्स है तो m इज इक्वल टू n है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हम करते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है diagonal matrix in which non-diagonal elements are non-zero, or a square matrix in which non-diagonal elements are 0 but diagonal elements are non-zero। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का, इसमें इट इज डायगोनल एलिमेंट्स। एंड डायगोनल के बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, 5 5 दोनों सेम है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स
0. Another example, 2 2 2 0 0 0 0 0 and 0. This is also scalar matrix 3 by 3 order. ये 2 by 2 order का था. Dear student, you know very well what is diagonal matrix and what is scalar matrix. Now we will discuss here unit matrix. Unit matrix. Unit matrix in which diagonal elements are unity 1 and non-diagonal elements are 0. This is unit matrix. यूनिट मैट्रिक्स और सेकंड नेम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी, हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. इसको आप I2 से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. I2 का मतलब हुआ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. I3 का मतलब हुआ 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. I3 मीन्स 3 by 3 ऑर्डर. ये थे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स. अब एक है जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स आप नाम से ही जान गए होंगे कि जीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो. जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो. स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट are 0 and 0 0 0 0 0 0. This is also a zero matrix but order 2 by 3, and this is also zero matrix order 3 by 3. We can represent capital letter O. नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, नल. इसका और नाम है वॉइड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. जीरो मैट्रिक्स, वर्ड मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स. प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ बढ़ते हैं. उसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स. अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, एंड व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स. अगर उसमें 5 एलिमेंट है तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं. हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए. अगर एलिमेंट्स 18 हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 18 टोटल एलिमेंट्स 18. इसको हम बाई फैक्टर से क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 18. एक तो ये इसका ऑर्डर हुआ, एक 18 इंटू 1 ये भी इसका ऑर्डर हुआ, 2 इंटू 9 18 होता है, ये इसका ऑर्डर हुआ, 9 इंटू 2 ये ऑर्डर हुआ, 3 by 6 ये इसका ऑर्डर है, 6 by 3. और क्या ले सकते हैं हम, अगेन इसके बाद कोई ऑर्डर इसका नहीं बनता, ये इसके 6 ऑर्डर हो सकते हैं. अगर इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स. वी कैन से पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स. अगर एलिमेंट्स 5 है तो इसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं, 5 को टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5 एलिमेंट्स. 5 को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 1 रो और 5 कॉलम और 5 रोज एंड 1 कॉलम. दीज आर 2 फैक्टर्स ऑफ 5. ये 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अगर एलिमेंट्स 5 हैं. तो अगर 13 एलिमेंट्स होते तो 1 इंटू 13, 13 इंटू 1. दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 आपकी एक्सरसाइज का. अगर हमें दिया हुआ है एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और हमारे पास A इज इक्वल टू AIJ, ये हमारा 4th क्वेश्चन. इसमें ऑर्डर कितना है, 2 by 2 यहाँ दिया हुआ है ऑर्डर. और एलिमेंट किस तरह से डिसाइड करने हैं, हमें दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू I प्लस J की पावर 2 अपॉन 2. हम यहाँ पे पुट करेंगे सेकंड ऑर्डर और सेकंड रो और सेकंड कॉलम
इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल A11 एलिमेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? i की जगह 1 और j की जगह 1, 1 + 1 2, 2 2 जा 4, 4/2 2 आ जाता है। तो 2 1 2। अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट निकालेंगे। फर्स्ट 1 + 2 3, 3 2 द पावर 2, 9/2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट i की वैल्यू 2 और j की 1, फिर 3 3 की पावर 2, 9/2 एंड A22 का मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 2 2। तो 2 + 2 4, 4 4 जा 16/2 मीन्स 8। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम मैट्रिक्स A क्या लिख पाएंगे? 2 9/2 9/2 and 8. This is the 2/2 order matrix. हमारे पास अगर इस तरह से दे रखा है और ऑर्डर 2/2 है, तो हम इस प्रकार से मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। i की वैल्यू 1 1 2 1 1 2 2 1 और 2 2। यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, जैसे अगर हमारे पास एक 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिसाइड करना है। मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन है या 5th क्वेश्चन है। अगर हमारे पास ऑर्डर दे रखा है 3/4, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3/4 ऑर्डर, और फाइंड आउट कैसे करने हैं? Aij को डिसाइड कैसे करना है? 1/2 - 3i + j। ये क्या है? मोड। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। अब हमें 3/4, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ मैट्रिक्स का नाम लिख सकते हैं हम A। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स का नाम भी। तो A = A11। A11 पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, A12 A13 और A14, क्योंकि कॉलम 4 है। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। दिस इज द मैट्रिक्स। अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे i की वैल्यू 1, j की भी 1, यहाँ 1 रखोगे तो माइनस का 2, -2 एब्सोल्यूट है, +2 2/2 यानी 1 आ जाता है। अब 1 2, i की वैल्यू 1, j की 2, -3 +2 -1 -1 यानी -1 का एब्सोल्यूट 1 1/2। अब 1 3 रखेंगे तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ 3, तो वैल्यू 0। 1 4 रखेंगे तो 4 - 3 1 1/2 आ जाएगा। अब 2 1 रखेंगे तो 3 2 = 6 और 1 यानी कि 5/2। 2 2 रखेंगे, 3 2 = 6 -2 करेंगे तो माइनस का 4 4/2 यानी एब्सोल्यूट 4, यानी माइनस की तो वैल्यू आएगी ही नहीं क्योंकि एब्सोल्यूट है। तो 4/2 मीन्स 2। अब 2 3 रखेंगे, 2 3 = 6 3 माइनस का 3 3/2 यानी कि प्लस का 3/2। और 2 4 रखेंगे, 3 2 = 6 -4 यानी कि 2 2/2 मीन्स 1। अब 3 1 रखेंगे तो 3 i की जगह 3 और j की जगह 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आती है? 4। और 3 रखेंगे 9 और 2 यानी 7/2। और 3 3 रखेंगे, 3 3 = 9 -3 6/2 यानी +3। और 3 4 रखेंगे, 9 -4 मीन्स 5/2। दिस वन इज द मैट्रिक्स। ये 3/4 ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स आ जाता है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 6th का थर्ड पार्ट लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। और इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हमने बताया था, इनके ऑर्डर सेम होना चाहिए और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं।
अब ये इनका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 3, 3 रो और 1 कॉलम, 3 by 1, एंड इसमें भी 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ऑर्डर सेम है। तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वेशन, एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने इक्वल लिख लिए हैं। अब x प्लस जेड और y प्लस जेड की वैल्यू क्या दी हुई है 7। हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं। y प्लस जेड की जगह हम 7 को पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे y प्लस जेड है, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं 2, x इज इक्वल टू 2। इफ वी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 x पुट किया 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एंड जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। z की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है, और अब हम x की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। अब y के निकालने के लिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, फ्रॉम 1 x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस x की वैल्यू क्या है, हम 2 रख सकते हैं, y की जगह क्या रख देंगे, y, और z की जगह 3 रख सकते हैं, और इट इज इक्वल टू 9। 3 और 2 5, और y की जगह हम y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 5 मीन्स 4। ये थी हमारी y की वैल्यू, x 2, y 4 और z इज इक्वल टू 3। इस प्रकार से हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, उसको भी हम इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। आपके पास वो इक्वेशन दी हुई है, जैसे इक्वेशंस हैं आपके पास, अगर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, यहाँ पे x की जगह a b एंड c, और फ्रॉम द इक्वेशन आपके पास अगर ये दी हुई हो 2a प्लस c और 2a माइनस b 3c प्लस a, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, -1 5 0 and 13। दिस इज ऑल्सो 2 by 2, दिस इज ऑल्सो 2 by 2 ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो इक्वल मैट्रिक्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये a11 a21 a21 की वैल्यू 0, a11 की वैल्यू यहाँ पे -1। हम इन्हीं को सोल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, -a की वैल्यू -1 और a इज इक्वल टू 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a, वी गेट a इज इक्वल टू 1 माइनस b इज इक्वल टू -1, माइनस b इज इक्वल टू -1 एंड 1 इस साइड जा कर के हम माइनस का कर देते हैं, माइनस का 2, और b माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू है हमारे पास 2। अब हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं और यहाँ भी पुट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप कौन सी भी इक्वेशन बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं हम 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 लिख देते हैं, और a की वैल्यू हमारे पास 1 आई हुई है, तो हम वैल्यू 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 मीन्स 3, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे 3.1 में एक तो हमने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया है और एक कंसेप्ट यूज़ हुआ है इक्वल मैट्रिक्स का।
इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपको ऑर्डर देखना है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखना है, तो हम इन क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।